Hello everyone, welcome back and good evening. And I hope everybody is doing good and enjoying the lectures on sequence. Very soon we are going to finish with our sequences and we will start with our series. But before starting with our lecture 11, let's have a quick recap of lecture number 10. So in our lecture number 10, we have actually discussed the homework questions which were based on recursive sequences. And then in our last lecture, we have started with some of the statements and theorems. As I told you that now we have done a lot of things which are completely based on the applied portion. Now it's time to start with some theoretical statements and their proofs. एंड प्रूफ हम क्यों पढ़ रहे हैं उसका भी रीज़न मैंने आपको समझा दिया था फॉर सेक ऑफ सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, स्पेशली फॉर सेक्शन बी, बिकॉज सेक्शन बी में आपको चारों ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे. तो अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू है और आप काउंटर्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हो देन ऑब्वियसली यू आर नॉट गोइंग टू गेट द काउंटर. सो फिर आपको ऑब्वियसली थ्योरेटिकली प्रोसीड करना पड़ेगा. तो दिस इज द वे यू शुड लर्न कि हाउ यू कैन prove whether the statement is true. Okay, so let's proceed further. So that we have already covered few of the statements in our last lecture. So the first statement that we covered was that if an is a sequence which converges to limit L, then if we form another sequence which is modulus of an sequence, then that converges to modulus of L. ठीक है. Second statement that we covered along with its proof in the last class was that an is a null sequence if and only if mod an is a null sequence, which means if sequence an converges to 0, then without checking and without evaluating you can directly say mod an sequence also converges to 0. And this is true vice versa also, like if modulus of an is a sequence which converges to 0, then an also converges to 0. थर्ड स्टेटमेंट वॉज ऑल्सो इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट विच सेज अगर आपका सीक्वेंस ए एन एल पे जा रहा है तो ए एन माइनस एल सीक्वेंस जो फॉर्म करोगे वो 0 पे जाएगा. और अगर ए एन माइनस एल एक सीक्वेंस है विच इज गोइंग टू 0 देन ए एन सीक्वेंस विल कन्वर्ज टू एल. ठीक है. और इनके प्रूफ हमने डिस्कस कर लिए थे. वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड कि ये मॉडुलस ऑफ ए एन सीक्वेंस कैसे बनाते हैं, ए एन माइनस एल सीक्वेंस हम कैसे बनाएंगे, राइट. ये सब कुछ हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. एंड द लास्ट स्टेटमेंट दैट वी कवर्ड इन आवर प्रीवियस लेक्चर वॉज दिस. That was the last statement that we did along with its proof that if we have two sequences an and bn where the terms of the sequences an and bn follow this, like modulus of an is less than equals to modulus of bn for every n and bn is a bn is a null sequence, then we can obviously answer something about the sequence an. And what is that an is also a null sequence. ठीक है, ये हमने पढ़ा था. तो आज हम कुछ और स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे. ठीक है, और उनका प्रूफ भी देखेंगे. सो स्टार्ट करते हैं. सो स्टेटमेंट 5 से हम शुरू करते हैं. अभी के लिए ये जो मैंने दो स्टेटमेंट्स लिखे हैं आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू बिकॉज सिंस एवरीथिंग इज रिटन ऑन द स्लाइड. बट स्टेटमेंट नंबर 7 से मैं वापस से सब कुछ यहीं पे लिख के और आपको एक्सप्लेन करूंगी. ठीक है, बट फॉर दीज टू स्टेटमेंट्स प्लीज डू अंडरस्टैंड बिकॉज इट्स ऑलरेडी written on the slide and due to some technical issue it was not recorded. Somehow the voice was not coming, so I thought not to erase it and just continue with this. So what does the statement says? It says that if an and bn are two sequences which are null sequences. So what does it imply? That an और bn दो sequences हैं जो 0 पे converge कर रही हैं. तो अगर आप उनका sum form करते हो, एक नई sequence create करते हो, तो that is also going to be a null sequence. ठीक है. So now the point is an plus bn sequence दिखेगी कैसे? I am already explaining you from the last lecture that sequences के केस में कोई भी चीज जो होती है वो कैसे परफॉर्म करी जाती है, टर्म बाय टर्म परफॉर्म करी जाती है. मतलब मैं कहना क्या चाहती हूँ कि सपोज एक सेट के बारे में मैं आपको बताती हूँ. ठीक है, कि हमारे पास सेट जो है वो कैसा दिखता है. सपोज S1 एक सेट है, उसमें एलिमेंट हमने लिया 2 और 4. ठीक, और S2 एक सेट लिया हमने जिसमें एलिमेंट लिया -5 और 8. तो अगर कोई आपसे S1 प्लस S2 पूछते हैं तो स्टूडेंट्स यूजुअली क्या करते हैं, व्हाट दे विल डू कि वो इनका सम करेंगे 1 आ जाएगा और फिर वो क्या करते हैं इनका सम करते हैं और
ये लिख देते एंड दैट्स इट. बट दिस इज नॉट एक्चुअली व्हाट द सम ऑफ सेट इज ऑल अबाउट. S1 प्लस S2 अगर आप निकालोगे तो आप पेयर बनाओगे. एवरी पॉसिबल पेयर यू आर गोइंग टू टेक. सो 2 minus 1 is 1, 2 plus 8 is what? 10. Then 4 minus 1 is 3 and 4 plus 8 is what? 12. So this is going to be S1 plus S2. आपको हर पॉसिबल जो पॉसिबिलिटी बन सकती है उसको देखना पड़ेगा. बट इन केस ऑफ सीक्वेंसेस दिस इज नॉट ट्रू, क्योंकि आपको पता है कि सीक्वेंस के केस में जैसे अभी हमने मॉडुलस an एक सीक्वेंस सीखी है ना, फिर हमने सीखा कि मॉडुलस ऑफ an एंड an माइनस l सीक्वेंस हम कैसे फॉर्म करते हैं. तो वैसे ही हमारे पास an प्लस bn होगा. एवरीथिंग इज गोइंग टू बी डिफाइंड टर्म बाय टर्म. an अगर सपोज करो एक सीक्वेंस है a1 a2 a3, bn एक सीक्वेंस है लाइक दिस, तो an प्लस bn जो होगा वो टर्म बाय टर्म होगा, लाइक a1 प्लस b1, देन a2 प्लस b2, a3 प्लस b3 एंड सो ऑन. और सपोज करो इसको हम एक नया नाम देते हैं सीक्वेंस को, से इट इज cn. ठीक है, सो दैट्स हाउ इट इज गोइंग टू परफॉर्म. अब बिफोर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द प्रूफ एक और चीज समझ लेते हैं कि क्या ये जो हमने स्टेटमेंट लिखा है उसका कन्वर्स पार्ट ट्रू होगा कि नहीं. कन्वर्स पार्ट ट्रू का क्या मतलब है? an bn दो सीक्वेंसेस हैं जहां पे an प्लस bn एक नल सीक्वेंस है. तो क्वेश्चन ये है कि क्या an और bn इंडिविजुअली भी नल सीक्वेंसेस होंगी. तो द आंसर इज द कन्वर्स पार्ट नीड नॉट टू बी ट्रू. मतलब अगर सम ऑफ टू सीक्वेंसेस नल सीक्वेंस है तो an और bn इंडिविजुअली नल सीक्वेंसेस हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने an एक सीक्वेंस लिया n, bn एक सीक्वेंस लिया माइनस n. an प्लस bn आप निकालोगे 0 आएगा विच इज अ कांस्टेंट सीक्वेंस. करेक्ट, सबको पता है कि ये हमारे पास एक कांस्टेंट सीक्वेंस है. और अगर ये हमारे पास कांस्टेंट सीक्वेंस है तो ये कैसी होगी? एक जिस वैल्यू से डिफाइन करी गई है उसी पे जाके ये कन्वर्ज करेगी. तो ये 0 पे कन्वर्ज करेगी, मतलब an प्लस bn कैसी हो गई? नल सीक्वेंस हो गई. लेकिन इंडिविजुअली an और bn को देखोगे तो दैट आर नॉट नल सीक्वेंसेस. इनफैक्ट दे आर डाइवर्जेंट सीक्वेंसेस, वो कन्वर्ज भी नहीं कर रही. ठीक है, तो अगर आप दूसरा एग्जाम्पल देखो, an को मैं 1/n, bn को -1/n लेती हूँ. आप सेम भी ले सकते हो, bn को वापस 1/n ले लो. तो an प्लस bn नल सीक्वेंस आएगा बिकॉज इट्स अ कांस्टेंट सीक्वेंस मेड बाय 0. एंड अगर आप इंडिविजुअल सीक्वेंसेस की तरफ देखोगे तो दैट आर ऑल्सो कन्वर्जेंट सीक्वेंस एंड कन्वर्जिंग टू 0. So this is why I am saying that converse part of the above statement need not to be true. If the sum is a null sequence, then the individual sequences need not to be the null sequences. जैसे यहाँ null निकली और यहाँ पे नहीं निकली. ठीक है, तो converse part true है, statement true है. Now coming to the proof of the statement. तो देखो हमारे पास given क्या है? For some reason मैं भी ये मिटा देती हूँ. ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो एंड आई विल टॉक अबाउट इट लेटर. ठीक है, चलो. सो क्या करते हैं हम कि चूज कर लेते हैं an जो है वो 0 पे जा रही है. गिवन an और bn दो सीक्वेंसेस हैं जो नल सीक्वेंसेस हैं, तो an 0 पे जा रहा है और bn 0 पे जा रहा है. तो हमारे पास पता है कि an कन्वर्जेंट है, तो हम कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस का डेफिनेशन लगाएंगे. दैट इज फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट n1, a natural number for which this condition holds. Modulus of an minus 0 is less than epsilon for every n greater than equals to n1. तो 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम इस लाइन पे आ गए. ठीक है, bn भी 0 पे जा रही है. अब देखो हम यहाँ पे n0 लिखते हैं यूजुअली, बट यहाँ पे मैंने n1 n2 क्यों लिखा है? प्रॉब्लम इज कि n0 जो है वो सिर्फ एक नोटेशन है, राइट? और वो एक वैल्यू स्टोर कर रहा है. तो an सीक्वेंस के लिए जो वैल्यू n0 स्टोर कर रहा है, जरूरी थोड़ी है bn के लिए भी n0 सेम वैल्यू रखे. दैट इज जस्ट अ नोटेशन. सो टू रिमूव द कंफ्यूजन तो हमने n1 और n2 कर लिए. ठीक, अब bn इज ऑल्सो अ नल सीक्वेंस. इट मीन्स व्हाट इज गोइंग टू हैपन दैट फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर n2 फॉर विच mod bn minus 0 is what is less than epsilon. ठीक है, for all n greater than equals to n2. ऐसा बन गया हमारे पास. ठीक, अब हमें प्रूफ क्या करना है कि जो an प्लस bn है वो भी नल सीक्वेंस हो. तो हर एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए जब भी
मॉडुलस ऑफ ए एन प्लस बी एन माइनस जीरो लेस देन एप्सिलॉन हो तो हम एक एन नॉट ढूंढ के दे दें जिसके लिए ऐसा हो, ठीक है। अब एन नॉट यहाँ पे हमने मैक्स ऑफ N1 N2 लिया है। ये बात उन बच्चों को समझ आएगी जिन्होंने लेक्चर 2 में एक थ्योरम पढ़ी थी, दैट एवरी सीक्वेंस विच इज कन्वर्जेंट इट कन्वर्जेस टू अ यूनिक लिमिट, है ना, या फिर एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज अ यूनिक लिमिट। तो वहां पे भी मैंने आपको एन नॉट मैक्स क्यों लिया है वो समझाया हुआ था, ठीक है। तो वहां से आप समझोगे, जिन्होंने नहीं देखा है वो लेक्चर, गो एंड वॉच दैट लेक्चर, यू विल अंडरस्टैंड व्हाई आई एम टेकिंग एन नॉट एज द मैक्सिमम ऑफ N1 एंड N2, ठीक। तो मॉडुलस ऑफ ए एन प्लस बी एन माइनस जीरो, क्योंकि जीरो हम प्रूव करना चाहते हैं, लिमिट है ए एन प्लस बी एन का, तो जीरो से कोई फर्क नहीं बना, ऐसा आ गया। नाउ वी आर यूजिंग द मॉडुलस प्रॉपर्टी, तो मॉड ऑफ ए एन प्लस बी एन इज लेस देन इक्वल्स टू मॉड ए एन प्लस मॉड बी एन, ठीक है। तो ये बन गया। अब देखो मॉडुलस ऑफ ए एन लेस देन एप्सिलॉन है, मॉडुलस ऑफ बी एन भी लेस देन एप्सिलॉन है, तो ये 2 एप्सिलॉन बन गया। इसको आप एप्सिलॉन 1 भी कह सकते हो। तो यहाँ पे फिर आपको क्या लिखना पड़ेगा, फॉर एवरी एप्सिलॉन 1 ग्रेटर देन जीरो मॉड ए एन प्लस बी एन माइनस जीरो लेस देन एप्सिलॉन 1 फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन नॉट। तो प्रूव हो जाएगा कि आपके पास ए एन प्लस बी एन जीरो पे जा रही है, इट मीन्स ए एन प्लस बी एन इज अ व्हाट, नल सीक्वेंस। बट फॉर सिंप्लिसिटी हम क्या कर देते हैं, हम यहाँ एप्सिलॉन बाई 2 कर लेते हैं, यहाँ एप्सिलॉन बाई 2 कर लेते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ देखो जब ये एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 आएगा तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास, एप्सिलॉन बचेगा, ठीक है। और वही हम दिखाना चाहते थे क्योंकि हमने यहाँ पे एप्सिलॉन लेके चले हम लोग, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से क्या प्रूव हो गया कि जो आपके पास ए एन प्लस बी एन सीक्वेंस है दैट इज अ नल सीक्वेंस। तो लेके चले थे ए एन और बी एन नल सीक्वेंस, और पहुंच कहाँ गए, ए एन प्लस बी एन इज अ नल सीक्वेंस। तो वही हमारे पास स्टेटमेंट कह रहा था कि इफ ए एन एंड बी एन आर नल सीक्वेंसेस देन देयर सम इज ऑल्सो अ नल सीक्वेंस, ठीक है। चल स्टेटमेंट 6 पे चलते हैं। स्टेटमेंट 6 क्या कह रहा है हमारे पास कि अगर ए एन जो है वो एक नल सीक्वेंस है, इट मीन्स ए एन इज कन्वर्जिंग टू जीरो, बी एन एक बाउंडेड सीक्वेंस है, तो आपको पता है कि हर एक टर्म जो है वो बाउंड होगा किन्हीं दो नंबर्स के बीच में। तो अगर मैं प्रोडक्ट डिफाइन करती हूं इन दो सीक्वेंसेस का, तो एक नई सीक्वेंस जो जनरेट होती है वो एक नल सीक्वेंस बनेगी, ठीक है। थोड़ी देर के लिए सपोज करो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है स्टेटमेंट सेक्शन बी में, एंड यू हैव नेवर एवर हर्ड ऑफ इट। अब क्योंकि ये स्टेटमेंट ट्रू है, आपको मालूम नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप काउंटर्स ढूंढना चालू करोगे। बट एग्जामिनर को तो पता है ना कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो आपको काउंटर्स तो कभी मिलेंगे नहीं। अब नहीं मिलेंगे तो तुक्का तो नहीं लगा सकते हो, लगा भी सकते हो क्योंकि सेक्शन बी में कोई नेगेटिव मार्किंग है नहीं, बट आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना चाहते हो, राइट। तो फिर आपको थियोरेटिकली क्या करना पड़ेगा, प्रोसीड करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं आपको प्रूफ्स बता रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हमने जैसे हर एक स्टेटमेंट में समझा है कि ये प्रोडक्ट वाला जो सीक्वेंस है ये डिफाइन कैसे किया गया है, ठीक है। तो टर्म बाय टर्म ही होगा। तो ए एन एक सीक्वेंस मान लो, A1 A2 A3 AN, है ना, BN मान लो, और प्रोडक्ट करना है तो टर्म बाय टर्म करोगे, तो फर्स्ट टर्म का फर्स्ट टर्म के साथ, सेकेंड टर्म का सेकेंड के साथ, थर्ड का थर्ड के साथ, करेक्ट। तो A1 into B1, A2 into B2 and A3 into B3, like this we are going to form this sequence। सपोज करो इसको हम कह रहे हैं कि दिस इज अ CN सीक्वेंस, ठीक है, इसको नाम दे दिया हमने CN सीक्वेंस, ठीक है। लेकिन इसको हमें प्रूफ करना है, तो देखो क्या दिया है कि AN एक नल सीक्वेंस है, तो भाई हम उसका डेफिनेशन लगा देते हैं। क्या, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट एन नॉट अ नेचुरल नंबर फॉर विच मॉड AN माइनस जीरो इज लेस देन एप्सिलॉन। अभी के लिए आप ये M भूल जाओ, क्योंकि मैंने बोला कि ये लेक्चर में रिकॉर्ड कर रही थी ऑलरेडी, तो मैंने ये सब लिख रखा था, बट क्योंकि उसमें समहाउ वॉइस नहीं आई तो मैंने सोचा दोबारा से लिखने से बेटर है मैं लिखा रहने देती हूँ, ठीक है। तो अज्यूम करो दिस इज मॉड M, अभी डिवाइड बाय M नहीं लिखा है, ठीक है। तो सिर्फ इतना लिखा है कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट एन नॉट फॉर विच मॉड AN माइनस जीरो इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन नॉट, और जीरो हमने फिर हटा दिया। और BN दिया है बाउंडेड, तो बाउंडेड सीक्वेंस का भी तो हमने डेफिनेशन पढ़ा था, क्या, कि एक पॉजिटिव रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा M फॉर विच मॉड BN इज लेस देन इक्वल टू M फॉर एवरी n, यानी एवरी टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज बाउंडेड बिटवीन माइनस M एंड कैपिटल M, ठीक है। अब हमें प्रूव करना है कि AN इंटू BN नल सीक्वेंस होगी।
तो फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, जब भी मॉड an इंटू बी एन माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन होगा तो एक n नॉट ढूंढ के दे दें ताकि ये इनइक्वालिटी होल्ड करे n ग्रेटर देन इक्वल्स टू n नॉट के लिए। तो प्रोसीड किया, an इंटू बी एन माइनस 0 किया, ये an इंटू बी एन बना। अब हम मॉडुलस की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप सबको पता है कि मॉडुलस ऑफ an इंटू बी एन इज लेस देन इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ an इंटू मॉडुलस ऑफ बी एन। अब मॉड an जो था वो सिर्फ n ग्रेटर देन इक्वल्स टू n नॉट के लिए लेस देन एप्सिलॉन हमने लिखा, और मॉड bn तो एवरी n के लिए था, तो फॉर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू n नॉट के लिए तो ऑब्वियसली होल्ड करेगा, तो लेस देन इक्वल टू m लिख दिया। अब देखो ये एक नया एप्सिलॉन 1 बन जाता, क्या एप्सिलॉन इंटू m जो है वो एप्सिलॉन 1 बन जाता, तो हम यहाँ पे एप्सिलॉन 1 लिख देते। ठीक है, तो आई होप अब आपको समझ आ रहा हो। तो फॉर सिंप्लिसिटी हमने इसको एप्सिलॉन बाई m कर दिया, तो m कैंसिल आउट होके एप्सिलॉन बन गया। ठीक है, तो हम एक n नॉट ढूंढ पा रहे हैं ना an इंटू बी एन सीक्वेंस के लिए, और वो n नॉट an जैसा है वैसा ही उसका भी n नॉट होगा, तो जिसके लिए an और bn क्या हो रही है, 0 पे कन्वर्ज कर रही है, मतलब an इंटू बी एन इज ऑल्सो अ नल सीक्वेंस। क्लियर हो गया? सो आई होप दीज टू स्टेटमेंट्स आर क्लियर। ठीक है, तो चाहो तो 1 मिनट का ब्रेक लेके देख भी सकते हो, समझ सकते हो कि क्या लिखा हुआ है। ऑल राइट, सो एनी प्रॉब्लम टू एनीवन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, यस, or you can ask me on Telegram either after the class or in between the class. Okay, so I think everything is clear till this point. तो एक बार और देखते हैं, 5th वाला स्टेटमेंट क्या था कि अगर an और bn नल सीक्वेंस है तो उनका अगर मैं सम डिफाइन करके क्या करती हूँ, एक नया सीक्वेंस बनाती हूँ, तो वो सीक्वेंस कैसा होगा, वो भी एक नल सीक्वेंस होगा। ठीक है, इन अ सिमिलर वे अगर हमारे पास an एक नल सीक्वेंस है और bn क्या है, bn एक बाउंडेड सीक्वेंस है, तो अगर मैं उनका प्रोडक्ट डिफाइन करती हूँ तो वो प्रोडक्ट क्या होने वाला है, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ नल सीक्वेंस। ठीक, अब ये कुछ स्टेटमेंट्स के बाद हमारे पास एक और टॉपिक है यहाँ पे जिसको बोला गया है एल्जेब्रा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज एल्जेब्रा ऑफ सीक्वेंसेस। तो क्या है ये एल्जेब्रा ऑफ सीक्वेंसेस, देखते हैं जरा हम लोग। तो एल्जेब्रा ऑफ सीक्वेंस में सिंपल सी ये बात है, 2 सीक्वेंसेस हैं और उनके बीच में कुछ जो इंफॉर्मेशन है वो पास करी गई है। ठीक, सपोज करो हमारे पास 2 सीक्वेंस हैं। ठीक है, वी हैव सीक्वेंस an एंड वी हैव सीक्वेंस bn। अब ये सीक्वेंस an और सीक्वेंस bn के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है और फिर इनके सम पे, प्रोडक्ट पे कुछ रिलेशन दिए गए। ठीक, तो इफ बोथ दीज सीक्वेंसेस आर कन्वर्जेंट, यानी कि लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे an सपोज करो a है एंड लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे bn सपोज करो b है। ठीक है, सो वी हैव two sequences an and bn, both are convergent, an converges to a and bn converges to b। then आपके पास यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, वो क्या है देखते हैं जरा। तो सबसे पहले ये बोला गया है कि आप अगर लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे an प्लस bn निकालोगे, अभी आपको पता है कि an प्लस bn सीक्वेंस डिफाइन कैसे करते हैं, तो पहले से पता है कि an कन्वर्जेस टू a, bn कन्वर्जेस टू b, तो an प्लस bn सीक्वेंस जो फॉर्म करोगे तो वो कन्वर्जेंट होगी, एंड कन्वर्जेंट होने के साथ साथ आप उसका लिमिट भी पता कर सकते हो, दैट इज नथिंग बट a प्लस b। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। एंड सेम चीज किसके लिए होल्ड करती है, सेम चीज होल्ड करेगी अगर आप यहाँ पे क्या करते हो, सब्ट्रैक्ट कर देते हो दोनों सीक्वेंसेस को, तो भी ये होल्ड करेगा। ऑलराइट, इन अ सिमिलर वे अगर आप लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे दोनों का प्रोडक्ट करते हो, जो कि अभी आप देख कर आए हो कैसे डिफाइन करते हैं, तो वो क्या होगा a इंटू बी। लेकिन याद रखना ये कन्वर्स पार्ट ट्रू नहीं होगा, अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको नल सीक्वेंस वाले एग्जाम्पल से बता के आई हूँ। यानी अगर an प्लस bn कहीं कन्वर्ज कर रहा है तो इट डज नॉट मीन कि an और bn कन्वर्ज करेगा, कुछ नहीं कह सकते। ऑलराइट, बट अगर वो दोनों कन्वर्जेंट है तो सम और प्रोडक्ट और बाकी सब पे आप आंसर कर सकते हो और लिमिट भी बता सकते हो इजीली।
ठीक है। इन अ सिमिलर वे वन मोर कि लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे सपोज करो एक स्केलर है अल्फा इंटू ए एन, वो कहाँ जाएगा, अल्फा इंटू ए पे जाएगा, वेयर अल्फा बिलोंग्स टू अ रियल नंबर। तो अल्फा इंटू ए एन सीक्वेंस कैसे डिफाइन होगी, उस सीक्वेंस का हर एक टर्म अल्फा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। वैसे ही लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे, जो कि अभी हम पढ़ के आए हैं, मॉडुलस ऑफ ए एन सीक्वेंस जो होगी, है ना, ये एक सीक्वेंस हम डिफाइन कर सकते हैं ना, मॉडुलस ऑफ ए एन। तो अगर आप इसका लिमिट निकालने जाओगे तो ये क्या आएगा, मॉड ऑफ ए आ जाएगा। ठीक, और फाइनली हमारे पास लास्ट स्टेटमेंट क्या कहता है, देखो जरा, विच इज फिफ्थ स्टेटमेंट। और फिफ्थ स्टेटमेंट कुछ ये बात कहता है कि अगर आप, जैसे हमने ये सब डिफाइन किया वैसे हम डिवीजन के लिए भी तो डिफाइन कर सकते हैं। तो इफ वी आर इवेल्युएटिंग लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी ए एन बाई बी एन, तो वो कहाँ जाएगा, a बाई बी पे चला जाएगा। बट याद रखो यहाँ पे कंडीशन है, ये डिफाइन कब होगा, वो तभी डिफाइन होगा जब बी एन नॉन जीरो हो फॉर एवरी n एंड हमारा b जो है वो भी नॉन जीरो। तभी तो भाई सीक्वेंस अगर आप डिफाइन कर रहे हो ए एन बाई बी एन, तो वो सीक्वेंस कब डिफाइन होगी, ए वन बाई बी वन, ए टू बाई बी टू, ए थ्री बाई बी थ्री, टर्म बाई टर्म हो रहा है डिवीजन। तो ये सारे टर्म्स जब कैसे होंगे, नॉन जीरो होंगे, तभी तो आप ये वाली एक सीक्वेंस डिफाइन कर पाओगे, वरना तो कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। और लिमिट भी उनकी तब एग्जिस्ट करेगी कब, जब क्या कर दो आप, जब जो लिमिट आ रही है हमारे पास बी एन की जो है वो नॉन जीरो। ठीक, तो इसी रिजल्ट से रिलेटेड देखो, आप ऐसा भी तो लिख सकते हो कि लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे 1 बाई ए एन जो है वो 1 बाई ए पे जाएगी whenever your an is non-zero for all n and your a is also non-zero। ठीक, इसी रिजल्ट पे बेस्ड है ये। तो अब देखो इनका प्रूफ भी बहुत सिंपल है, बट आई एम नॉट राइटिंग डाउन द प्रूफ ऑफ दीज एल्जेब्रास बिकॉज बहुत इजी है। अभी मैंने जो आपको बताई हैं स्टेटमेंट्स, जैसे हमने उनको प्रूफ किया है, आप बिल्कुल एग्जैक्टली इनको भी प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम इन प्रूविंग ऑल दीज स्टेटमेंट्स। तो अब बहुत आसान काम हो गया है ना, कोई दो सीक्वेंसेस अगर कन्वर्जेंट हैं और उनको मिला के अगर एक नई सीक्वेंस बनाई जा रही है, विच इज कैन बी सम, देयर प्रोडक्ट, देयर डिफरेंस, या फिर हम किसी अल्फा से मल्टीप्लाई कर दे या मॉडुलस ले लें, तो वो सब कन्वर्जेंट होंगी और आप उनके लिमिट पे भी कुछ ना कुछ आंसर कर सकते हो। ठीक है, सो दोज हु आर इंटरेस्टेड वो आपका जो प्रूफ है वो लिख सकते हैं, क्योंकि अब तक मैंने जितने प्रूफ लिखे हैं आपके लिए अब ये बहुत आसान हो गया है। ठीक, और यहाँ पे एक चीज और लिख सकते हो आप, क्या, कि जो कन्वर्स पार्ट है वो ट्रू नहीं होगा। ठीक है, कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू, यहाँ पे लिख सकते हो आप, कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू, है ना। उसका रीजन मैंने आपको दिया, जैसे मॉडुलस वाले को आप पकड़ लो, है ना, तो ए एन एक सीक्वेंस ले लो -1 की पावर n, तो मॉड ए एन क्या होगा, एक कांस्टेंट सीक्वेंस 1, वो कन्वर्ज हो रहा है, बट क्या होगा, जो आपका ए एन सीक्वेंस है वो तो नहीं कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, तो इन सब का जो कन्वर्स है वो जरूरी नहीं है कि सही हो, तो इस बात को बस आप ध्यान रखना। ठीक, सो ये थी एल्जेब्रा। और एल्जेब्रा समझना बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अब तक यूजुअली क्या होता था, देखो सपोज हमारे पास एक सीक्वेंस दिया हुआ है, क्या, 1 बाई एन। ठीक, 1 बाई एन एक सीक्वेंस दिया हुआ है, एन 1 बाई एन प्लस -1 की पावर n बाई 2n। ठीक, तो अगर मैं पूछती ही, अगर अभी तक किसी भी बच्चे से पूछूं कि लिमिट क्या होगा सीक्वेंस ए एन का अगर वो कन्वर्जेंट है, तो यूजुअली बच्चे क्या बोलते हैं कि मैम इसका लिमिट जो है वो 0 होगा। कैसे, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे 1 बाई एन प्लस -1 की पावर n, ऐसा कर दिया और हमने इसको लिख दिया लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 बाई एन प्लस लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी -1 की पावर n बाई 2n। बट द क्वेश्चन इज आपने ऐसा लिख कैसे दिया। ठीक है, तो अब तक आप लोग को रीजन नहीं पता था, बट नाउ यू नो द एल्जेब्रा ऑफ सीक्वेंसेस, करेक्ट।
तो अलजेब्रा ऑफ सीक्वेंस आपको पता है, तो इसका क्या मतलब है, देखो आपने बड़ी आसानी से सेपरेट कर दिया, लिमिट इस पे लगा दी, लिमिट इस पे लगा दी। क्यों ऐसा किया? क्योंकि ये आपके पास एक सीक्वेंस है, सपोज करो Cn, और ये आपके पास एक सीक्वेंस है सपोज Bn, और ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है और कन्वर्ज कर रही है 0 पे। ये वाली सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट है और ये कन्वर्ज कर रही है 0 पे। अब सिंस दीज टू सीक्वेंसेस आर कन्वर्जेंट, तो इनके सम से आपने एक नई सीक्वेंस बनाई थी, इसलिए आपने लिमिट सेपरेट कर दी और बोला यस 0 + 0 = 0, 0 पे जा रही है। समझ आया? तो ये जो आप बड़ी इजीली लिमिट्स को सेपरेट कर देते हो ना टर्म्स के बीच में, ये अलजेब्रा की वजह से ही पॉसिबल है, अदरवाइज यू कैन नॉट डू इट। ऑलराइट, तो रिमेंबर दिस पॉइंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच आई वांटेड टू टेल यू। ठीक है, तो आई डोंट थिंक सो कि यहां तक अभी किसी को कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक, अब कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स करते हैं और उसके बाद हम प्रोसीड करते हैं। ठीक, तो लेट्स डू सम थ्योरम्स, और आज कोशिश करेंगे कि कॉशी के लिमिट्स तक पहुंच जाएं, तो देखते हैं। तो हियर इज आवर थ्योरम विच आई एम राइटिंग। आई होप ये वाला जो टेक्स्ट का फॉन्ट साइज है वो ठीक हो आपके लिए। ठीक है, बिकॉज कुछ हमने चेंजेस किए हैं। All right, so what is the theorem? Let me write it down and then we'll discuss. If limit n tending to infinity an is equal to 0, ठीक है, तो limit n tending to infinity पे, sorry, let's make few changes. an जो है वो a पे जा रहा है, ठीक, and हमारे पास a को जो है वो हम कह रहे हैं ये एक नॉन जीरो नंबर है। तो थ्योरम क्या कह रही है कि an एक सीक्वेंस है जो कि कन्वर्जेंट है और कन्वर्ज कहाँ कर रही है, किसी एक नॉन जीरो रियल नंबर पे। तो थ्योरम ये कहती है देन देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर k विच इज अ पॉजिटिव नंबर एंड एक इंटीजर m बिलोंग करता है, या कह दो एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा, फॉर विच व्हाट हैपेंस कि जो मॉड ऑफ an है वो ग्रेटर देन k होगा। ठीक है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m। ठीक है, तो एक बार और थ्योरम पढ़ते हैं। थ्योरम क्या कह रही है कि अगर आपके पास एक सीक्वेंस an है विच इज कन्वर्जेंट एंड कन्वर्जेस टू अ नॉन जीरो रियल नंबर, तो हमारे पास एक पॉजिटिव रियल नंबर और एक नेचुरल नंबर m एग्जिस्ट करेगा, जिसके लिए ये इनइक्वालिटी होल्ड हो, यानी मॉडुलस ऑफ an इज ग्रेटर देन k फॉर एवरी n ग्रेटर देन और इक्वल्स टू m। ठीक, देखो बहुत सिंपल सा है। अगर हम इसको प्रूफ करने पे आए कि हमारे पास ऐसा क्यों होगा, ठीक है, तो देखो हम क्या करते हैं, गिवन क्या है हमको यहां लिखते हैं कि हम प्रूफ की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। व्हाट इज द प्रूफ? तो सी इट्स वेरी सिंपल। हमें क्या दिया हुआ है कि an जो सीक्वेंस है वो कहाँ कन्वर्ज कर रहा है, a पे कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, तो अगर a पे कन्वर्ज कर रहा है तो व्हाट डज इट इम्प्लाई कि फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 व्हाट इज गोइंग टू हैपन, मॉडुलस ऑफ an माइनस का a लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m कह देते हैं। देयर एग्जिस्ट m अ नेचुरल नंबर, वहां से एग्जिस्ट कर जाएगा ये m, देखो एग्जिस्ट कर गया ना वहां से, बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट ऑफ द सीक्वेंस। अब इसी में देखो हम कुछ कुछ चेंजेस कर सकते हैं, कैसे, ध्यान से देखना। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, मॉडुलस ऑफ a लिखते हैं, ठीक, थोड़ी देर के लिए। और अब हम यहाँ पे देखो चाहे तो हम प्लस an एंड माइनस an कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं। और अब हम क्या करेंगे, मॉडुलस की प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो मॉडुलस ऑफ a क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ a माइनस का an और प्लस मॉडुलस ऑफ an। अब जो a माइनस an है, मॉडुलस का कोई फर्क तो पड़ता नहीं नेगेटिव नंबर से, तो अगर आप माइनस टाइम्स an माइनस a लिखोगे तब भी वो वही आएगा, क्या, मॉडुलस ऑफ an माइनस a प्लस मॉडुलस ऑफ an। ठीक है, इतना बन गया हमारे पास, ये चीज इसके इक्वल आ रही है। अब
मॉडुलस ऑफ ए एन माइनस ए तो क्या है, लेस देन एप्सिलॉन है ना, किसके लिए, फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू व्हाट, एम। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, दिस इज व्हाट, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, ओके, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन प्लस मॉडुलस ऑफ ए एन, लेकिन ये किसके लिए हो रहा है, फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम। Now you see from here, can you get something? Yes, modulus of A minus epsilon is less than modulus of An for every n greater than equals to m. And now you see from here we are getting all the results. Are we getting something? Yes. यहां से आप चाहो तो लिख सकते हो कि modulus of An is greater than modulus of A minus का epsilon for every n greater than equals to m. तो आप कह सकते हो कि आपके पास एक पॉजिटिव रियल नंबर एग्जिस्ट करता है k विच इज इक्वल टू मॉड a माइनस एप्सिलॉन, और एक इंटीजर एग्जिस्ट करता है, पॉजिटिव इंटीजर और अ नेचुरल नंबर m फॉर विच दिस इज हैपनिंग। इजी था देखो। अब देखो फॉर सिंप्लिसिटी कुछ लोग इसी में कुछ चेंजेस कर देते हैं। कैसे चेंजेस कर सकते हैं, देखो हमें क्या दिखाना है कि k एक पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक, तो हमें यह भी दिखाना पड़ेगा कि मॉडुलस ऑफ a माइनस एप्सिलॉन जो है वो एक पॉजिटिव रियल नंबर है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास जो a की वैल्यू है वो कैसी है, वो नॉन जीरो है, ठीक है, तो हम क्या करें, एप्सिलॉन को क्या ले लें, मॉडुलस ऑफ a बाई 2 ले सकते हैं ऐसा, और मॉडुलस जो है हमारे पास वो पॉजिटिव होता है और a नॉन जीरो है, तो हमारे पास एप्सिलॉन पॉजिटिव हो गया कि नहीं हो गया। तो अब अगर इसको यहां पे यूज करोगे तो देखो क्या मिला, मॉडुलस ऑफ n इज ग्रेटर देन मॉड a माइनस मॉड a बाई 2 विच इज सिंपली व्हाट, ग्रेटर देन मॉड a बाई 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m। तो आपने ये भी दिखा दिया कि ये जो k आपके पास एग्जिस्ट कर रहा है वो ऑब्वियसली क्या है, एक पॉजिटिव रियल नंबर है, क्योंकि a नॉन नेगेटिव है और a जो है वो नॉन जीरो है। अब मॉड a नॉन नेगेटिव है, ठीक है, तो सिंपल था। तो अब एक चीज ये समझते हैं कि एक्चुअली ये थ्योरम कहने की क्या कोशिश कर रही है। पढ़ भी लिया, प्रूव भी कर लिया, बट व्हाट डज इट एक्चुअली इंप्लाई, ठीक है, ध्यान से देखो। अब अगर an को हम बोल रहे हैं कि वो कन्वर्जेंट है, ठीक है, अब कुछ लोग बोलेंगे कि हम यहां से कह सकते हैं, हमने ये पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, पढ़ा है हमने, यहां से एक रिजल्ट पढ़ा है, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, ठीक है, ट्रू, लेकिन इसका कन्वर्स पार्ट ट्रू नहीं है। अब वहां से लिंक करने की कोशिश करो, बोला है कि सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है ए पे, मतलब कन्वर्जेंट है, तो वो बाउंडेड तो होगी ना फॉर श्योर, और अगर वो बाउंडेड होगी तो उसका लीस्ट अपर बाउंड और हमारे पास उसका जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है वो एग्जिस्ट करेगा, ठीक, तो वो विच इज ट्रू 200%, देयर इज नो प्रॉब्लम, है ना, कि हमारे पास एक सीक्वेंस होगी, मतलब सीक्वेंस m जो होगी वो माइनस m से m के बीच में हर एक नंबर जो है वो लाई करेगा, ठीक, तो ये ट्रू है। तो इसी को एक छोटे से रिस्पेक्ट में लिख दिया है, देखो कि भाई एक नंबर k होगा, एग्जिस्ट करेगा, जिसके लिए इनिशियल कुछ m-1 टर्म्स को छोड़ दो, बाकी के टर्म ये रिलेशन होल्ड करेंगे। तो कहने का क्या मतलब है, a1 a2, सपोज करो यहाँ am-1 है, am है और am+1 है, लाइक दिस, तो ये सारे के सारे नंबर जो है वो -m से तो बड़े ही होंगे, ठीक, सब के सब है -m से बड़े हैं फॉर ऑल n, लेकिन एक नंबर हम ऐसा सपोज करो m1 भी तो ढूंढ सकते हैं जिससे यहाँ के इंडेक्स वाले सारे एलिमेंट्स बड़े हों। देखो am जो है वो आपका m1 से बड़ा हो, या am+1 हो, या am+2, पर ये होल्ड नहीं कर रहे हैं। तो वो ही कह रहे हैं कि हमेशा ऐसा होगा कि एक k एग्जिस्ट करेगा जिसको अब m1 को आप k मान लो, ठीक है, एक ऐसा k एग्जिस्ट करेगा और एक इंडेक्स एग्जिस्ट करेगी जिसके लिए ये होल्ड होगा। तो बाउंडेड बिलो तो है ही, बट बाउंडेड बिलो बाय अ नंबर होगा m-m, जिससे सारे होंगे, तो कुछ n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m को आप बाउंडेड बिलो बाय स्मॉल k दिखा दो, बस इतनी सी ये थ्योरम है। अब देखो जो मैंने यहां पे ड्रॉ किया है उससे आप समझ सकते हो। तो
देखो ये भले ही आपको अभी बोरिंग लग रहा हो कि क्या ही है, बट इफ यू लुक एट दिस स्टेटमेंट, ऐसा स्टेटमेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है। कैन यू सी दैट? और इसको समझने के लिए आपको बस इतना समझना था जो मैंने आपको बताया। अगर आप प्रोसीड भी ना करो इस प्रूफ से तो आप बस इतना समझ लो कि भाई -m से तो हर एक एलिमेंट बड़ा ही है फॉर ऑल n, और यहां पे आप बस इतना लिख लो a1 a2 दिस इज am-1 am। तो हो सकता है एक नंबर k एग्जिस्ट करे, विच इज फॉर श्योर एग्जिस्ट करेगा, जिससे हम इतने नंबर्स को बाउंड दिखा दें। तो यहीं पे एक नंबर ले लो am-1 और am के बीच में, ठीक है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट्स करने जरूरी हैं, क्योंकि एग्जाम में सेक्शन बी में यू नेवर नो कौन से टाइप का स्टेटमेंट जो है वो पूछ लिया जाए, ठीक है। तो ये थी हमारी थ्योरम, और अब हम कुछ और स्टेटमेंट्स जो हैं वो करते हैं और उसके बाद बढ़ते हैं, विच इज अगेन अ थ्योरम ओनली, ठीक है। सो लेट मी राइट डाउन थ्योरम नंबर 2 आज की, और ये थी हमारी थ्योरम नंबर 1, ठीक है। तो शुरू करते हैं। और ये क्या कहती है, बहुत सिंपल सिंपल से स्टेटमेंट्स है, ठीक है। इफ अ सीक्वेंस an converges to a एंड आपका जो सीक्वेंस का हर एक टर्म है वो कैसा है, वो नॉन नेगेटिव है, ठीक, फॉर ऑल n। तो सीक्वेंस क्या कहती है कि जो सीक्वेंस की लिमिट होगी a, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक। आई होप समझ आ गया हो स्टेटमेंट। सिंपल सा स्टेटमेंट क्या है कि अगर एक सीक्वेंस an जो है वो a पे जा रही है, ठीक है, हम कह रहे हैं सीक्वेंस an जो है वो a पे जा रही है और an जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है फॉर ऑल n, तो आंख बंद करके हम इस लिमिट पे कुछ कह सकते हैं, और ये क्या कि ये भी नॉन नेगेटिव होगी, ठीक है। तो इसका प्रूफ लिखते हैं, और इसका प्रूफ मैं लिखूंगी, और इसके आगे की अब हम जो भी स्टेटमेंट्स लिखेंगे उसका प्रूफ जो है वो आपके लिए एक टास्क होगा, आप आराम से बैठ के उसको प्रूफ कर सकते हो, ठीक। अब देखो यहाँ पे हमें क्या प्रूफ करना है कि जो मेरे पास सीक्वेंस an है जिसका हर एक टर्म नॉन नेगेटिव है, जो कन्वर्जेंट है a पे, उसका लिमिट भी क्या होगा, नॉन नेगेटिव होगा। तो ऐसे प्रूफ्स को करने का एक सिंपल सा तरीका हमको पता है ना, क्या है वो तरीका, कि भाई आप इसको कहां से दिखा दो, कॉन्ट्राडिक्शन से दिखा दो, ठीक। कॉन्ट्राडिक्शन से कैसे, मान लो कि आपके पास ये जो a बोला है नॉन नेगेटिव प्रूफ करने को, ये नेगेटिव है, ठीक है, सपोज कर लो, तो आगे कुछ ना कुछ फैक्टर मिलेगा जो कॉन्ट्राडिक्ट कर देगा फैक्ट को, ठीक। अब क्या बोला है कि जो आपके पास सीक्वेंस an है वो कन्वर्ज कर रहा है a पे, ठीक। तो इसका क्या मतलब होगा कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एक नेचुरल नंबर n0 एग्जिस्ट करेगा, फॉर विच व्हाट हैपेंस मॉडुलस ऑफ an माइनस a इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू n0, ठीक है, ऐसा होगा। अब इस इनइक्वालिटी को अगर थोड़ा और आगे प्रोसीड करोगे तो माइनस एप्सिलॉन से an माइनस a प्लस एप्सिलॉन तक जाएगा, फिर a माइनस एप्सिलॉन से an की जो वैल्यू है a प्लस एप्सिलॉन तक आएगी। अब देखो अगर कुछ लोगों ने ध्यान दिया हो तो आपको यहां से नोटेशन या जो कॉन्ट्रडिक्शन वाला पार्ट है वो मिल चुका है। एनीवन हु कुड आइडेंटिफाई कि फ्रॉम हियर हाउ वी आर गेटिंग की कॉन्ट्रडिक्शन हमें मिल गया है, एनीवन? ओके, अब देखो हमें बोला है कि सीक्वेंस का हर एक टर्म जो है वो कैसा है, वो या तो 0 है या तो पॉजिटिव है, करेक्ट। अब ये वाली लाइन क्या कह रही है, an जो है वो a माइनस एप्सिलॉन से a प्लस एप्सिलॉन के बीच में लाई कर रही है, करेक्ट। अब a जो है वो तो हमारे पास नेगेटिव है ना, ध्यान से देखो a जो है वो तो नेगेटिव है ना, और ये फॉर एवरी एप्सिलॉन के लिए ये होल्ड हो रहा है सिंस a इज नेगेटिव। और सपोज कर लो थोड़ी देर के लिए कि मेरे पास जो एप्सिलॉन की वैल्यू है वो कितनी हम ले ले, सपोज करो माइनस का a/2 ले लेते हैं। और ऐसा क्यों मैं कह रही हूं
क्योंकि a अगर नेगेटिव है तो माइनस ऑफ नेगेटिव वैल्यू इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। और ये क्योंकि ट्रू है एवरी एप्सिलॉन के लिए, तो हमने एक एप्सिलॉन अपनी मर्जी से चूज कर लिया और इसको अब यहां रखो। तो यहां पे क्या मिलेगा, ध्यान से देखो, a माइनस ऑफ a बाई 2, तो a प्लस a बाई 2 हो जाएगा। ठीक, तो a प्लस a बाई 2 आपको क्या मिलेगा, 3a बाई 2 मिल जाएगा। यहाँ पे लिख ही लो a प्लस a बाई 2 और an क्या आया, दिस इज a माइनस a बाई 2 इज a बाई 2। अब आप लोग बताओ कुछ समझ पा रहे हो कि नहीं, यहां से यहां पहुंच जाओ। सिंस a इज नेगेटिव, सो व्हाट हैपेंस, ये जो आपका 3a बाई 2 से an जो है a बाई 2 के बीच में लाई कर रहा है, ये क्या बोल रहा है कि an तो है वो हमारा नेगेटिव हो गया ना, an नेगेटिव हो गया फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल्स टू n नॉट। क्योंकि a नेगेटिव है तो an बोल रहे हैं 3a बाई 2 से a बाई 2 के बीच में लाई कर रहा है, इसका मतलब an तो नेगेटिव हो गया और सारे के सारे इंडेक्स के लिए विच आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू n नॉट। बट यहां तो क्या बोला है कि an इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर एवरी n। तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई कि नहीं आ गई, देखो, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन टू द फैक्ट दैट एवरी टर्म ऑफ द सीक्वेंस an इज व्हाट, नॉन नेगेटिव। इट इंप्लाइज व्हाट, इट सिंपली इंप्लाइज कि जो आपके पास लिमिट a है सीक्वेंस an की, दैट इज ऑल्सो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो आई होप इट इज क्लियर, है ना। कॉन्ट्राडिक्शन, और कॉन्ट्राडिक्शन किस फैक्ट का हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन टू an ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल n, दैट इज वाई दिस इज फॉल्स। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक एप्सिलॉन की वैल्यू माइनस a बाई 2 चूज करी, आप कुछ भी चूज कर लो, इट डजेंट मैटर, a बाई 3 चूज कर लो, है ना, a बाई 4 चूज कर लो, कुछ भी नेगेटिव चूज कर लो और a के रिलेशन में, ताकि ओवरऑल वैल्यू यहाँ पे क्या a के टर्म्स में आ जाए। ऑलराइट, होप दिस इज क्लियर। तो ये थ्योरम थी हमारे पास। अब आगे की जो भी थ्योरम्स मैं अभी लिखूंगी आप बहुत इजीली जो है उनको प्रूव कर सकते हो। तो हम सिर्फ क्या करेंगे, हम जो थ्योरम है वो समझेंगे। ठीक, अब एक और चीज यहाँ पे समझने वाली है कि क्या इस थ्योरम का जो कन्वर्स पार्ट है वो ट्रू है क्या। ठीक है, यानी हमारे पास थ्योरम क्या लिखी गई है, थ्योरम लिखी गई है सिंपल से इतनी कि जो सीक्वेंस an है वो a पे जा रहा है वेयर an इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल n। तो ये थ्योरम ने अप्लाई कर दिया कि a इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो माई क्वेश्चन इज अबाउट द कन्वर्स पार्ट, इज कन्वर्स पार्ट ऑफ द थ्योरम ट्रू, ऑफ थ्योरम 2 इज ट्रू। थिंक अबाउट इट, टेक 1 मिनट। यानी कि क्वेश्चन ये है कि an जो है वो a पे कन्वर्ज कर रहा है जहां पे a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो क्या an जो होगा वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा फॉर ऑल n, क्वेश्चन ये है। ठीक, ये एम्प्लाई कर रहा है। तो इसका आंसर जो है वो सिंपली नो है। ठीक है, यानी कहने का क्या मतलब है कि कन्वर्स पार्ट ऑफ थ्योरम 2 नीड नॉट टू बी ट्रू, नीड नॉट टू बी ट्रू। कैसे, जरा ध्यान से देखो। थोड़ी देर के लिए एक सीक्वेंस an को मान लो विच इज -1 की पावर n बाय n। ठीक है, आप सबको पता है कि लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे an जो है, जो कि a वैल्यू आएगी विच इज लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी -1 की पावर n बाई n विच इज 0। तो ये हमारा ये वाली कंडीशन को होल्ड कर गया कि a जो है वो हमारा कैसा आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बट जो हमारे टर्म्स हैं सीक्वेंस के, है ना, an जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं है फॉर एवरी n। कुछ टर्म पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है। दैट इज वाई आई एम टेलिंग यू कि जरूरी नहीं है कि ये ट्रू हो। अब जरूरी नहीं है तो मतलब कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे होंगे जहां पे हो सकता है ये वैल्यू, ये बात सही भी हो। हाँ, तो एक bn सीक्वेंस ले लो विच इज नथिंग बट 1 बाई n। तो इस केस में जो b आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। बट जो bn है वो कैसा है, वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है फॉर ऑल n। तो एक स्टेटमेंट गलत कर रहा है, एक सही कर रहा है। इसलिए मैं कह रही हूं कन्वर्स पार्ट ऑफ द थ्योरम नीड नॉट टू बी ट्रू।
ठीक है, तो अब नेक्स्ट थ्योरम जो भी हम कवर करेंगे उसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे स्टेटमेंट की और उसके कन्वर्स पार्ट की। जो हमारा प्रूफ वाला पार्ट है वो आई थिंक आप लोग अब बहुत अच्छे से कर सकते हो, मैंने इतने सारे प्रूफ्स लिख दिए हैं क्योंकि। ठीक है, सो थ्योरम नंबर 3 हमारे पास क्या कहती है कि अगर हमारे पास दो सीक्वेंसेस हैं, ठीक, इफ an converges to a, if an converges to a and sequence bn जो है that converges to b, ठीक है, to b such that what is happening कि हमारे पास जो an है वो लेस देन इक्वल्स टू bn है फॉर ऑल n। तो हमारे पास सिंपल सा थ्योरम ये कहती है जो इनकी लिमिट्स होंगी इनके बीच में भी ये रिलेशन होल्ड होगा। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि इफ लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी an इज a, लिमिट n यानी जो गिवन इंफॉर्मेशन है bn इज b, एंड हमारे पास क्या हो रहा है an इज लेस देन इक्वल्स टू bn हो रहा है फॉर ऑल n। तो थ्योरम इम्प्लाइज दैट द लिमिट विल ऑल्सो हैव द सेम रिलेशन, यानी कि अगर an लेस देन इक्वल टू bn हो रहा है फॉर एवरी n वेयर an एंड bn बोथ आर कन्वर्जेंट, तो क्या होगा हमारे पास जो लिमिट है a और b उसमें भी ये रिलेशन होल्ड करेगा। ठीक है, एंड आई थिंक अभी बहुत अच्छे से आप कर सकते हो। ठीक है, बहुत इजीली कर सकते हो ना प्रूफ। अब इसके लिए अगर याद करो एक दिन मैंने आपको बताया था जब मोनोटोनिसिटी प्रूफ करना था, कभी भी आपको एक टर्म को दूसरे टर्म से अगर ऐसा रिलेशन दिखाना है तो बेसिकली आपको ये दिखाना है ना, या फिर ऐसा दिखाना है, तो आप वही काम करोगे ना। ठीक है, तो मान लो Cn एक सीक्वेंस ले लो विच इज an माइनस bn। ठीक, तो सीक्वेंस का हर एक टर्म कैसा है, नेगेटिव है क्योंकि ये रिलेशन होल्ड कर रहा है। तो अब आपको सीक्वेंस Cn की लिमिट पता है ना बाई एलजेब्रा, अभी हम एलजेब्रा पढ़ के आए, उसकी लिमिट क्या होगी a माइनस का b। तो अब आप इजीली प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ। और देखो अभी हम पीछे एक थ्योरम पढ़ के आए हैं, उसकी हेल्प से ये क्वेश्चन हो जाना है। ठीक, कैसे, ये हमने पढ़ा ना कि अगर सीक्वेंस an a पे जा रही है जहां पे an ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो जो हम पीछे पढ़ के हैं उसी से हो जाएगा। यहां देखो, यहां पे आप क्या लिख सकते हो, क्या कि Cn जो है वो लेस देन इक्वल टू 0 है फॉर ऑल n सिंस an इज लेस देन इक्वल टू bn। तो जो लिमिट होगी Cn की वो भी तो लेस देन इक्वल टू 0 होगी। या अब क्योंकि हमने जो थ्योरम पढ़ के आए हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए पढ़ा है, तो bn माइनस an पढ़ लो, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो Cn ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया फॉर ऑल n। तो जो लिमिट Cn की होगी वो भी क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। और लिमिट ऑफ Cn क्या है बाई एलजेब्रा, b माइनस ए, मतलब b माइनस ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब b ग्रेटर देन इक्वल टू। अब देखो हिंट देते देते पूरा प्रूफ ही हो गया। ठीक है, तो अब आपको सिर्फ लिखना है। तो अब आगे के मैं जो भी थ्योरम्स लिख रही हूं ना आपके लिए, उन सबको प्रूफ करने के लिए आपको ये जो पीछे थ्योरम्स पढ़ते जा रहे हो इनका यूज करना है। ठीक है, सो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन नाउ। यस, अब एक क्वेश्चन जो हमें डिस्कस करना है कि कन्वर्स पार्ट क्या होगा इस थ्योरम का, कि कन्वर्स पार्ट जो है वो ट्रू होगा क्या, कन्वर्स पार्ट। ठीक, तो ये मैं आपको टास्क दे रही हूं कि आपको कोई ऐसी दो सीक्वेंसेस ढूंढनी है जिसके लिए आपको देखना है कि क्या कन्वर्स पार्ट ट्रू है या नहीं है। ठीक है, तो ये मैं नेक्स्ट क्लास में पूछूंगी भी आपसे। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड विद अ काउंटर एग्जाम्पल, और सब लोगों को टेलीग्राम पे शेयर करना है। ठीक है, टेलीग्राम पे क्या शेयर करना है, थ्योरम नंबर 3 कन्वर्स पार्ट ट्रू है या नहीं है, और अगर नहीं है तो आपको दो काउंटर एग्जाम्पल देने, एक सेटिस्फाई करे और एक ना सेटिस्फाई करे। ठीक है, होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलो गोइंग टू थ्योरम नंबर 4, और आज मैं कोशिश कर रही हूं एटलीस्ट जितने स्टेटमेंट्स हैं वो तो क्लियर ही हो जाएं अपने, ताकि हम लोग नेक्स्ट क्लास में होपफुली कॉशी के जो लिमिट्स हैं थ्योरम वो शुरू कर पाए। ठीक है, तो थ्योरम नंबर 4 शुरू करते हैं। ओके, सो दिस इज आवर थ्योरम 4, और थ्योरम 4 क्या कहती है हमारे पास
कि अगर एक सीक्वेंस an है, ठीक है, जिसका हर एक टर्म लेस देन इक्वल टू अल्फा है फॉर एवरी n, एंड अल्फा कोई भी हमारे पास सपोज करो रियल नंबर है, ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, जो लिमिट है वो भी सेम चीज होल्ड करेगी, ठीक। एंड लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे, यानी कन्वर्जेंट है वो, सपोज करो दिस इज a, तो थ्योरम इंप्लाइज दैट a इज ऑल्सो गोइंग टू बी लेस देन इक्वल टू अल्फा। एक काम करती हूँ, कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं इसको बीटा लिख देती हूँ, ठीक है। इफ एवरी टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज लेस देन और इक्वल टू बीटा, देन द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस इज ऑल्सो लेस देन और इक्वल्स टू बीटा, ठीक। और सेम जो अभी मैंने आपको स्टेटमेंट या थ्योरम नंबर 3 प्रूफ करने के लिए थ्योरम 2 का यूज कराया था, आपको बिल्कुल वैसे ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सीक्वेंस ले लो an माइनस ए, ठीक है, या सॉरी an माइनस बीटा ले लो आप। अब an माइनस बीटा में क्योंकि अभी पॉजिटिव वाली थ्योरम पढ़ी, तो आप बीटा माइनस an ले लो विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो बीटा माइनस a ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो बीटा ग्रेटर देन इक्वल्स टू a, ठीक है, हो गया प्रूफ। सो अगेन यू हैव टू थिंक अबाउट द कन्वर्स पार्ट, ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ थिंक अबाउट कन्वर्स पार्ट, और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। एंड आई सी कितने लोग आंसर कर पा रहे हैं, कमेंट में आंसर करो या टेलीग्राम पे करो, यू हैव टू आंसर इट। तो थ्योरम 3, 4 का कन्वर्स पार्ट यू हैव टू आंसर, ठीक। लेट्स गो टू वन मोर थ्योरम विच इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, और वो कवर करके हमारा आज का जो काम है वो खत्म होगा। और इस थ्योरम को एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है, ठीक है, थ्योरम नंबर 5। इस थ्योरम को कुछ लोग स्क्वीज थ्योरम कहते हैं, ठीक है, स्क्वीज थ्योरम, या फिर कुछ लोग इसको सैंडविच थ्योरम भी कहते हैं, ठीक है। खाने वाला सैंडविच नहीं है ये, बट मान सकते हो वैसा ही, ऐसा ही कुछ अज्यूम किया गया है ना। तो लेट्स सी क्या है ये थ्योरम हमारे पास। तो इस थ्योरम में जैसे अब तक हमने जितने स्टेटमेंट्स पढ़े, क्या हो रहा था, हमेशा 2 सीक्वेंसेस थी, यहाँ पे आपके पास 3 सीक्वेंसेस हैं, ठीक है। सो इफ xn, yn and zn are sequences of real numbers, obviously क्योंकि हम वही पढ़ रहे हैं, ठीक। और इसके बाद अगर कुछ चीजें सेटिस्फाई होती हैं, क्या चीजें सेटिस्फाई होती हैं हमारे पास, देखो जरा, कुछ चीजें अगर सेटिस्फाई हो गई तो हम बोल देंगे कि हाँ, हम जो स्क्वीज थ्योरम है उसको लगा सकते हैं। क्या, पहली बात तो ये कि जो हमारे पास xn और 2 सीक्वेंस है zn, ठीक, xn और zn वो सेम लिमिट पे जाए, ठीक। तो क्या है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे xn एंड लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे जो zn है, ये दोनों एक ही पे जाएं, सपोज करो l। और एक ये कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए, क्या, कि हमारे पास xn लेस देन इक्वल्स टू क्या, yn लेस देन इक्वल टू zn हो रहा हो फॉर ऑल n। मतलब आप कह सकते हो कि फॉर ऑल n, या फिर फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू n नॉट, ठीक है, ऐसा भी कह सकते हो, फॉर सम n नॉट, या फिर फॉर ऑल भी होगा तो भी चलेगा, ठीक है। तो आप आंसर कर सकते हो लिमिट ऑफ द सीक्वेंस yn। बात समझ आ रही है, आप सीक्वेंस yn की लिमिट पे आंसर कर सकते हो, और क्या आंसर कर सकते हो कि लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे जो yn सीक्वेंस होगी वो भी l पे जाएगी। दिस इज कॉल्ड एज द सैंडविच थ्योरम। अगर आप देखोगे तो ये आपको सैंडविच जैसा ही कुछ नजर आएगा, लाइक इन बिटवीन 2 buns यू आर पुटिंग समथिंग, इसलिए इसको सैंडविच थ्योरम नाम दिया है। तो xn और yn कंसीडर्ड एज योर बन, और उसके बीच में आप yn जो है वो फिल कर रहे हो। तो वही बोला है कि अगर xn और zn, बट कंडीशन क्या, xn और zn सेम लिमिट पे जाएं, और अगर yn जो है वो हमेशा इन 2 टर्म्स के बीच में आ रहा है, तो जो लिमिट yn की होगी वो भी l होगी, यानी वो भी सेम लिमिट पे कन्वर्ज करेगा। दिस शुड बी फॉर ऑल n, बट समटाइम्स हम कंसीडर कर लेते हैं n नॉट के लिए भी, ठीक है।
अगर ऐसा है तो आप बोल दोगे कि यस सीक्वेंस yn इज ऑल्सो कन्वर्जेंट एंड इट कन्वर्जेस टू n. ठीक है. अब सैंडविच थ्योरम पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी यानी जो हमारा लेक्चर नंबर 12 होगा उसमें हम शुरू करेंगे कॉशी के फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट एंड कॉशी के सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट पे. और उसके बाद फिर से मान के चलो आप 1-1.5 लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ही करने वाले हैं. ठीक है. तो रिवाइज कर लेना सारी चीजें और मैंने आपको जो कुछ भी अभी बोला है कि आपको कमेंट सेक्शन में शेयर करना है काउंटर एग्जाम्पल्स या टेलीग्राम पे वेरेवर यू आर कंफर्टेबल प्लीज डू दैट. ऑलराइट. तो आज की क्लास के लिए फिर हम इतना ही रखते हैं एंड आई होप आपको सब कुछ समझ आया हो. इफ नॉट यू कैन आस्क मी. ऑलराइट. सो कीप स्टडीइंग हार्ड. टिल देन बाय बाय एंड सी यू ऑल इन आवर नेक्स्ट लेक्चर.